Good afternoon everyone. As we all know that 26th December is celebrated as Veer Bal Divas every year as a tribute to Gobind Singh Ji's son for their supreme sacrifices and bravery. So today we organize a quiz on Bal Divas and I hope that you will all listen the questions carefully and give me the right answers. And the questions are, all the questions are multiple choice questions. Okay? And the first question is, which Sikh festival is dedicated to the memory of Sahibzada's martyrdom? The options are Vaisakhi, Diwali, Shahidi Zor Mela, Hola Mohalla. Yes? Very good. The correct answer is Shahidi Zor Mela. And the second question is, what is the significance of Veer Bal Divas? The options are, first option is pay homage to the martyr warriors, second for children, third to encourage people, and fourth pay homage to the courage and martyrdom of the younger son of Guru Gobind Singh Ji. Yes? Yes. The correct answer is last one, pay homage to the courage and martyrdom of the younger son of Guru Gobind Singh Ji. The next question is, what was the age of Sahibzada Zorawar Singh at the time of martyrdom? And the options are 7 years, 9 years, 13 years and 11 years. Yes? 9 years. Correct answer is 9 years. And the next question is, what was the name of youngest Sahibzada? Options are Jujhar Singh, Ajit Singh, Zorawar Singh and Fateh Singh. Yes? Fateh Singh. Correct answer is Fateh Singh. And the next question, who was the founder of Sikhism? Options are Guru Nanak Dev, Guru Arjan Dev, Guru Gobind Singh Ji and Guru Amar Das. No, wrong answer. Yes? Guru Nanak Dev. Very good. Guru Nanak Dev is the correct answer. And the next question is, how many Sikhs fought the battle of Champaur Sahib? How many Sikhs? Battle of Champaur Sahib. And the options are 35, 5, 22 and 40. Yes? 40. The right answer is 46. And the next question is, who is the youngest martyr in the world's history? Youngest martyr. And the options, Ajit Singh, Zorawar Singh, Fateh Singh, Jujhar Singh. Yes? Ajit Singh. Ajit Singh? No. Ajit Singh is wrong answer. Yes? Right answer is Fateh Singh. And the next question is, who among the following codified the composition of the Gurus into an authorized version, that is Adi Granth? And the options are Guru Gobind Singh, Guru Amar Das, Guru Arjan Dev and Guru Nanak. Who will tell? Yes? Team B? Wrong answer. Yes? No. Wrong answer. The correct answer is Guru Arjan Dev. Next question, who introduced rites of initiation into the well-organized Sikh army known as Khalsa? And the options are Guru Har Das, Guru Har Gobind, Guru Tegh Bahadur and last one Guru Gobind Singh. Who will tell? No, wrong answer. Anyone? Yes, teammate? Guru Gobind Singh is the right answer. Next question is, who was the sixth Guru of Sikhs? The options are Guru Har Gobind, Guru Tegh Bahadur, Guru Har Rai, Guru Gobind Singh. Very good. Guru Har Gobind. And the last question is, which Guru of the six
transformed the Sikhs into a martial community? Who? And the options are Guru Gobind Singh, Guru Angad Dev, Guru Nanak Dev, Guru Tegh Bahadur. Anyone? Yes? Teammate? Guru? No. Wrong answer. Yes? No. Wrong answer. Both are wrong. Teammate and me. The right answer is Guru Gobind Singh Ji. Thank you, all of you. छात्रों, आज हम सब यहाँ पर अपने देश के वीरों की वीर गाथा के ऊपर चर्चा करेंगे। छात्र, आप तो यह सब जानते ही हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ था और उससे पहले हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था। अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक हमारे देश में शासन किया। इस दौरान उन्होंने हमारे देश के लोगों को अनेक यातनाएं दी और उनकी यातनाओं को सहन करते करते देश के लोगों ने इन यातनाओं को सहन करते करते हमारे देश के वीरों ने काफी संघर्ष किए देश को आजाद करवाने के लिए। और उन देश के जो वीर वीरांगनाएं हैं उनके नाम है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, चेन्नम्मा, महारानी लक्ष्मीबाई, दुर्गा भाभी आदि। आज हम इन वीर वीरांगनाओं की जीवन गाथा को स्मरण करते हुए कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं प्रश्न और आप उनके उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 1, हमारे देश में 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई? ऑप्शन 7 है दिल्ली, मेरठ, अंबाला। क्वेश्चन 2, 1857 के विद्रोह में लक्ष्मीबाई ने सेना का नेतृत्व कहां से किया था? झांसी से। एक हाथ में रखो जो आंसर देगा। नंबर 1, हमारे देश में 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई? ऑप्शंस हैं दिल्ली, मेरठ, अंबाला। मेरठ। बहुत अच्छा बेटे, ठीक है। मेरठ से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी हमारे देश के अंदर। प्रश्न नंबर 2, 1857 के विद्रोह में लक्ष्मीबाई ने सेना का नेतृत्व कहां से किया? झांसी से, वाराणसी से, ग्वालियर से? झांसी से। वेरी गुड बेटे, झांसी से, क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई झांसी में ही रहती थी और वहीं पर रहते रहते उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया झांसी से। प्रश्न नंबर 3, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे। सुभाष चंद्र बोस। बहुत अच्छा बेटे, हमारे देश को नारा देने वाले आजादी का जब आंदोलन चल रहा था देश को आजाद करवाने के लिए, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस नारे को देने वाले सुभाष चंद्र बोस ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? दत्तक पुत्र कहते हैं जो गोद दिया जाता है। ऑप्शन है इसके दामोदर राव, दयाकर राव, कृपा राव। दामोदर राव। बहुत अच्छा बेटे, महारानी लक्ष्मीबाई के जब पुत्र की मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने एक बेटा गोद दे दिया था, तो उसी को कहते हैं दत्तक और उसी का नाम था दामोदर राव। अपने बेटा जो उनका मृत्यु को प्राप्त हो गया था उसी के नाम पर दामोदर राव उन्होंने दत्तक पुत्र का रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 3 क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने एक साथ फांसी दी थी? ऑप्शंस हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर, मंगल पांडे, और थर्ड ऑप्शन है भगत सिंह, कुंवर सिंह, सुभाष चंद्र बोस। सुखदेव। से बोलो बेटे। भगत सिंह, सुखदेव। हाँ, बहुत अच्छा। हमारे 3 क्रांतिकारी ऐसे थे जिनको समय से पहले ही
सत्तावन की वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के हूँ हमने सुनी कहानी की। ये पंक्तियां किस कवि या कवियत्री ने लिखी है? ऑप्शन है बेटे कमलेश्वर, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। पूरा नाम बोलो। सुभद्रा कुमारी चौहान, यह है कवियत्री का नाम, जिन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर ये पूरी कविता लिखी थी। अगला प्रश्न है, हमारे देश में सैनिकों के मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वालों परिजनों को कौन वीरता पुरस्कार प्रदान करता है? हमारे देश के रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री या हमारे राष्ट्रपति? कौन पुरस्कार देता है बेटे? राष्ट्रपति। ठीक है बेटे, अच्छा है गुड। हमारे राष्ट्रपति जब हमारे देश के सैनिक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद जब उनको पुरस्कार दिया जाता है वीरता पुरस्कार, तो हमारे देश के राष्ट्रपति उनको पुरस्कार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज कहां से गठित हुई? सिंगापुर से, टोक्यो में या रंगून में? सिंगापुर से। ठीक है बेटे, सिंगापुर में रहते हुए सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर को, लाला लाजपत राय को या बाल कृष्ण गोखले को? लाला लाजपत राय। बेटे सही नाम इनका ये है लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय को ही पंजाब केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकीनाथ बोस कटक शहर में क्या पेशा करते थे? क्या पेशा था उनका, क्या काम था उनका? वे डॉक्टर थे, वकील थे या अध्यापक थे?